It gives me immense pleasure to welcome you all to this special occasion, a day filled with emotions, gratitude and cherished memories, our farewell ceremony. Today is not just about saying goodbye, but about celebrating a journey of moments. As medical students, we came here with dreams in our eyes and gradually added dark circles under them. But along the way, we also built friendships, memories, and a family that will last a lifetime. But we have also added charm to this occasion, making it truly memorable for all of us. Dr. Ishit Bharat sir, your visionary leadership and unwavering commitment continues to inspire us every day. We are truly privileged to have your presence here with us. I would also like to extend a warm and respectful welcome to our esteemed principal, Dr. B.C. Datta sir. Sir, your constant support, guidance and dedication have played a significant role in shaping this institution and nurturing all of us. Team members, thank you. Thank you so much for your patience, your guidance and for shaping us into the professionals we aspire to become. अब ज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान के प्रकाश को फैलाने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आइए दीप प्रज्वलन के साथ इस दीप केवल एक ज्योति नहीं बल्कि आशा, ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। मैं आदरणीय अतिथिगणों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर पधारें और दीप प्रज्वलित करें। As we continue, students are requested to come forward. Carrying forward this token of respect, students are now requested to present the bouquet to Dr. Papa Naik and Sir. Let's give them a big round of applause as we express our heartfelt gratitude. Person whose guidance continues to inspire and shape young minds. His experience, wisdom and dedication to education are truly moment of pride, reflection and transition. As the medical superintendent of this institution, it gives me immense pleasure to stand before a group of young doctors who are ready to step into the noble profession of healing. When you first entered this college, you carried the dream in your eyes and uncertainty in your mind. Today, you live with knowledge in your hands, confidence in your heart, and responsibility on your shoulders. Over the years, you have a moment of pride, reflection, and transition.
As the medical superintendent of this institution, it gives me immense pleasure to stand moment of pride, reflection and transition. As the medical superintendent of this institution, it gives me immense pleasure to stand before a group of young doctors who are ready to step into the noble profession of healing. When you first entered this college, you carried the dream in your eyes and uncertainty in your mind. Today, you live with knowledge in your hands, confidence in your heart, and responsibility on your shoulders. Over the years, you have not only learned the science of medicine, but also the art of compassion, patience, and ethical practice. Medicine is not just a profession, it is a lifelong commitment of humanity. You will be called upon ad hours, faced with difficult decisions, and entrusted with lives. In those moments, remember the values this institution has instilled in you: integrity, empathy, and dedication. As you move forward, always keep learning. Medical science evolves every day, and good doctor never stops being a student. Treat your patients with kindness, listen to them with patience. Your truly inspiring and insightful words. We are deeply grateful for your presence and for sharing your valuable thoughts with us. अब मैं विनम्रता पूर्वक माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर वीसी दत्ता सर से निवेदन करना चाहूंगी कि वे कृपया मंच पर आकर अपने विचारों से हमें मार्गदर्शित करें एवं हमारा उत्साह बढ़ाएं। A very good evening, Honorable Vice Chancellor sir, Honorable Registrar sir, respected faculty members, esteemed guests, 29th batch of MBBS graduates, the organizing team, the students and the supporting staff present. A very welcome to everyone. First of all, I extend my thanks for inviting me here for today's farewell ceremony organized by 31st batch of MBBS students to bid farewell to 29th batch MBBS students as they are going to complete compulsory internship training course from this institution after hard work of last 4.5 years. Though today is officially the last day of your academic journey, it is not the end, rather it is the beginning of a rightful chapter of your life. Over the years, I have noticed how quickly the time has passed. It looks like few days back you were stepping into this college with lots of dreams and ambition on your eyes to achieve your goal as a doctor, and today you are a MBBS doctor. MBBS is not just a degree, it is a promise, it is a commitment, it is a responsibility. I hope it is a time now to take decision independently whether you are pursue further higher studies or you are looking for a job or something else. But wherever life takes you, carry forward the values and morals you have learned here. As a doctor, show your honesty, respect, kindness, discipline and sincerity.
wherever you are absorbed. Never be afraid to do hard work. Today, on behalf of the entire staff, faculty members, express our best wishes to all the successful graduates of your success and happiness. We are confident that you will excel in your future endeavors. Here I want to take a moment to acknowledge each one of you for your hard work, dedication and responsibility. Remember, today is not the end of your journey, it is the beginning of a new career. Lastly, and us never stop learning, never forget the friends you have made here, and never forget the memories that you have created in this institution. Lastly, I convey my gratitude to the students of 31st batch of MBBS students for nicely and neatly organizing this farewell ceremony. Goodbye to 29th batch, and I wish each of one of you a beautiful life ahead that is full of success and happiness. Thank you all. सर, आपके प्रेरणा भरे शब्दों के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आपका मार्गदर्शन हमेशा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। धन्यवाद आपके इन विचारों के लिए। Respected Registrar Dr. Ishit Bharat sir to share their thoughts and bless us with the words of wisdom. Honorable Vice Chancellor, Matavir University, Principal, MSVP, all faculty members, students, staff, आज हम एक ऐसे दिन में खड़े हैं जब हम एक MBBS बैच को 29th बैच MBBS को फेयरवेल दे रहे हैं। आज का दिन बहुत प्राइड है उन 100 स्टूडेंट्स का जो आज से 5.5 साल पहले इस कॉलेज में आए थे। तब तो स्टूडेंट्स के मास्टर्स भी नहीं थे। आज आप इतने अच्छे डॉक्टर्स बन के यहाँ से जा रहे हैं। हाफ डिकेड आपने अपने लाइफ का यहाँ हमारे यूनिवर्सिटी में, हमारे मेडिकल कॉलेज में आपने बिताया है और एक सक्सेसफुल डॉक्टर्स बनकर जा रहे हैं। आज बहुत इमोशंस भी है कि आपने 5.5 साल हर एक दिन कुछ ना कुछ नया अपने लाइफ में यहाँ किया होगा, जो यादें लेकर आप आज यहाँ से जाएंगे। एक ड्रीम था, एक एस्पिरेशंस था, पेरेंट्स का भी ड्रीम होगा, आपका खुद, कुछ लोगों के खुद का भी ड्रीम होगा कि डॉक्टर्स बनना है। तो आज वो ड्रीम फुलफिल करके एक एस्पिरेशंस के साथ आप यहाँ से जा रहे हैं और कॉलेज मैनेजमेंट को, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को ये पूरा विश्वास है कि आप जो प्रोफेशन में आप आने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोफेशन है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो आप ह्यूमन लाइफ से डील करेंगे। आपका नॉलेज किसी के लाइफ को हील करेगा, किसी के लाइफ को आपके डिसीजंस बचाएंगे। तो आपको बहुत ही ज़्यादा एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनकर, एक डॉक्टर बनकर इस सोसाइटी को सर्व करना है। आप जान रहे हैं कि जो हमारा कंट्री है, देश है, उसमें डॉक्टर्स की कितनी कमी है। सभी डॉक्टर्स चाहते हैं कि अर्बन एरियाज में ही काम करें, रूरल एरियाज नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उस तरह की फैसिलिटीज जो है रूरल एरियाज में नहीं है। एक दो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा। आप जिस प्रोफेशन में है या जिस प्रोफेशन में कल से आप जाएंगे, वहां बुल्ली करने वाले लोग बहुत मिलेंगे। अभी तक क्या था कि आप सुबह 9 बजे अपना अटेंडेंस बनाते थे, एक सिस्टम था, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक एक कॉलेज है, एक रूटीन था और उस रूटीन को फॉलो करते थे।
लेकिन जब कल से आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो उतना इजी नहीं रहेगा। आपको प्रोफेशनल लाइफ जीने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिन में सिर्फ आपको पैर खींचने वाले ही लोग मिलने वाले हैं। इतना इजी नहीं रहा है अब अपने आप को इस्टेब्लिश करना और सोसाइटी को सर्व करना। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जितना ट्रेनिंग 5.5 साल में इस कॉलेज में सिर्फ प्रोफेशनली नहीं और भी दूसरी तरीके से जो भी मिला है उसको आप पूरा यूटिलाइज करेंगे। मैं बार बार कहता हूँ, आप किसी के जीने को मुश्किल करेंगे तो भगवान आपका मरना मुश्किल कर देगा। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने सोसाइटी को जहाँ पे भी आप जिस रूप में भी काम करेंगे अच्छे से करेंगे। मैंने देखा है डॉक्टर्स ईगो क्लासेस में जो है आपस में जब लड़ते हैं केस के लिए या कंपटीशन के लिए, तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली रूप से पेशेंट्स को आता है। तो बेचारे की क्या गलती। अब डॉक्टर्स अपने ईगो में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उसको पेशेंट्स पे दिक्कत आ जाती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जितना भी प्रॉब्लम्स है उसको खुद सॉर्ट आउट करके पेशेंट ट्रीटमेंट पे हमें ध्यान देना है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम डॉक्टर्स के पास आ गए मतलब भगवान के पास आ गए। तो बहुत समझिए वो अपने बॉडी को आपके लिए आपके पास दे देते हैं कि सर आप तो जो है आप ही वो करना है। इसलिए ट्रीटमेंट करने वक्त एक चीज ध्यान रखना है कि हम किसी के साथ बुरा ना करें, क्योंकि जब हमारे फैमिली में कोई किसी का तबीयत खराब होता है या किसी को प्रॉब्लम आती है या हमारे फैमिली में किसी को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो उस समय लगता है कि नहीं भगवान डॉक्टर्स एकदम अच्छे से करें, ट्रीटमेंट करें, कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरे पेशेंट्स को कोई दिक्कत ना हो। तो हर समय ये ध्यान रखना है कि जो पेशेंट्स है उसके भी कोई ना कोई ब्रदर होंगे, कोई ना कोई सिस्टर होंगे, मदर होगी, फादर होंगे। पेशेंट्स को इमोशनली ट्रीटमेंट नहीं करना है। इमोशनली किसी भी पेशेंट्स को आप ट्रीट नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट आपको एज ए डॉक्टर ही करना है, लेकिन केयर उसका इमोशन से करना है। कम्युनिकेशन, मैं बार बार बोलता हूं, पेशेंट से कम्युनिकेशन। आजकल मैं देखता हूं नया ट्रेंड बन गया है। पेशेंट्स जब आते हैं ओपीडी पे क्लिनिक में, बैठते नहीं है कि दवाई पहले लिखा जाता है, पीसीएम, डोलो, पेंडी, एक टॉनिक का दिया, पेशेंट पूछा भी नहीं कि क्या हुआ। कम्युनिकेशन 2 से 3 मिनट 5 मिनट्स कम्युनिकेशन करोगे पेशेंट से तो 20 से 30% प्रॉब्लम पेशेंट्स का ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। वो बाहर निकलता है तो बोलता है कि हाँ डॉक्टर ने मेरे को अच्छे से पूछा, हिस्ट्री लिया, मैं यहाँ के पीजीटीज के ऊपर एक्शन लेता रहता हूँ। कि मैं बोलता हूँ ओपीडी कार्ड में 16 ब्लैंक्स हैं, वो 16 ब्लैंक्स को आप कहीं फिल करोगे तो आपकी भी हैबिट होगी लिखने की। अभी आप एमबीबीएस करके जा रहे हो, आप जहाँ पे भी ज्वाइन करोगे एज ए जूनियर रेसिडेंट, आपको देखना अभी कितना पेपर वर्क करना पड़ेगा। और जिसने भी एमजीएम में शॉर्टकट किया है 1 साल इंटर्नशिप में, उसको रोना आएगा यार एमजीएम में तो 2 लाइन लिख के निकल जाते थे, यहाँ तो पूरा बीएसटी का बीएसटी भरना पड़ रहा है। चले जाओ पटना के किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, चले जाओ सिल्लीगुड़ी के किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, एक पेशेंट का 10-10 पेज का हिस्ट्री और पूरा डिटेल भरना पड़ता है। तो बार बार मैं बोलता हूं कम्युनिकेशंस और लिखने की आदत, प्रॉपर हिस्ट्री लेना, कम से कम 5 से 6 मिनट। मैं पिछले बार भी इसी टाइप का प्रोग्राम था, 28 बैच का, मैंने बोला था कि जो भी पेशेंट्स आपके ओपीडी से बाहर निकले तो मुस्कुराता हुआ निकले। आप उसके चेहरे को सिर्फ देख लो कि मुस्कुरा के निकल रहा है, जिसका मतलब है आपका ट्रीटमेंट ठीक है। टाइम देना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना कि जिंदगी, मैंने पहले भी बोला हुआ ये बात, जिंदगी जीना आसान नहीं है। जिंदगी जीना आसान नहीं है। जिंदगी ये 3 चीज, सब्र, बर्दाश्त, कि बगल वाले डॉक्टर ने मेरे को ऐसे बोल दिया, अच्छा आप उसको दिखाते हैं, उसको कहते हैं बर्दाश्त। सब्र, टाइम आएगा। एक मैंने अभी कल 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था कि टाइम का सबसे अच्छा चीज ये है, टाइम का
सबसे अच्छा चीज ये है कि वो बदलता जरूर है। रात के बाद सुबह होनी तय है। कभी कभी हम लोग को भी बहुत सारा चीज देखना पड़ता है, बस हम लोग यही वेट करते हैं, समय है, बदलेगा जरूर। तो लाइफ में बहुत कुछ नजरअंदाज, मैंने बोला सब्र बोला, बर्दाश्त बोला और नजरअंदाज करना सीख गए तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे, क्योंकि पीछे पड़ने से कोई फायदा नहीं है, उसी में रह जाओ। नजरअंदाज, हाँ उसने गाली दी, ठीक है दी, लेकिन रेस्पेक्ट, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को भी ये नहीं करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गाली दे दी, सुन लिया, निकल गया, महात्मा गांधी नहीं बनना है, मैं नहीं बनता हूँ, बाकी जो बने मेरे को नहीं पता, लेकिन नजरअंदाज करना सीखने की जरूरत है। हर छोटी छोटी चीजों में पड़ोगे तो उसमें ही उलझ के रह जाओगे, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो आजकल का जनरेशन को सबसे इंपॉर्टेंट है नजरअंदाज करना, बर्दाश्त करना और सब्र करना। ये आजकल के जनरेशन में बहुत ही ज्यादा देखा जा रहा है ऐसा कि ये बहुत कम हो गया है। ये तीन चीज अब बहुत कम हो गया है, इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग पेशेंट से कम्युनिकेशन करें, बहुत कुछ को नजरअंदाज करें, अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ें। और अब जिस तरह से मेडिकल कॉलेज पूरे इंडिया में खुल रहा है, ओपन हो रहा है, जो भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, मेरे को लगता है कि हल्का सा भी पढ़ाई करेंगे तो नीट में क्वालिफाई करके आराम से पीजी मिल सकता है हमको। और सिख माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स के लिए तो यहाँ पे कोटा भी है। तो मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि एनाटॉमी भी खराब नहीं है, एमडी एनाटॉमी भी खराब नहीं है, क्योंकि जिस तरह से नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं खुद रोज डॉक्टर्स को देख रहा हूँ और अपॉइंटमेंट कर रहा हूँ, एनाटॉमी का भी रिक्वायरमेंट इतना ज्यादा बढ़ चुका है, रेडियोलॉजी से टक्कर दे रहा है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के टीचर्स। इसलिए ये सोच लेना कि एमडी एनेस्थेसिया मिले, एमडी रेडियो मिलेगा तभी हम सीट लेंगे, तो इस चक्कर में 1-2 साल ऐसे ही निकल जाएगा। इसलिए कोशिश करना है कि जितना जल्दी, आने वाला समय एमबीबीएस के लिए बहुत टफ होने वाला है। आप देख रहे हो कि आने वाले 5 साल में अभी हमारा 1.5 लाख के अराउंड सीट हो गया एमबीबीएस का। पहले जब तुम लोग एमबीबीएस करने आए थे तो 75,000 के अराउंड था 5 साल पहले। तो सोच लो कितना मल्टीप्लाई हो रहा है। क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वालिटी तभी होगा जब तुम्हारे पास नॉलेज होगा, क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा होने वाला है। तो जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास एमडी एमएस की डिग्री है, जिसके पास एमबीबीएस में भी नॉलेज है, वो आगे सरवाइव कर पाएंगे, नहीं तो सरवाइव करना बहुत टफ होने वाला है। 5 इयर्स में सीधा एमबीबीएस की सीट्स डबल हो गई और 10 इयर्स के बाद एमडी भी जो है बहुत टफ होने वाला है। तो इसलिए सभी लोगों से, सभी स्टूडेंट से, जो भी आज यहाँ से जा रहे हैं एज ए डॉक्टर्स बन के, मेरा बेस्ट विशेष है फॉर द पीजी, और अपने लाइफ में वो अच्छा करें, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करें, सोशल मीडिया से देखकर दूसरे के लाइफ को ये ना सोचे कि अरे वो तो बहुत अच्छा लाइफ जी रहा है। सोशल मीडिया में सबका लाइफ अच्छा होता है। कभी देखे हो सोशल मीडिया में कोई अपने खराब चीज को डालता है? कोई डालेगा खराब चीज? 1 घंटा पहले पूरा घर में तिकरमबाजी हुआ होगा, 1 घंटे बाद ऐसा स्टेटस डालेगा कि लगेगा किसी घर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, और उसके चक्कर में हम लोग अपना घर बर्बाद कर देते हैं। सोशल मीडिया से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया एक सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया ही आजकल जिसको देखो 20,000 25,000 फॉलोअर हो गया, उसको 5,000 रुपया तो जो बुलवाना है बुलवा। मेरे पास 1-1 लाख 1.5 लाख फॉलोअर वाले आते हैं कि सर 5,000 दीजिए ना, जो बुलवाइएगा एमजीएम के बारे में बोल रहे हैं। तो ये सब का कोई वैल्यू नहीं है, टाइम वेस्ट है। अपने लाइफ को अपने तरीके से जीना है, अपने पेरेंट्स के हिसाब से जीना है। हमारे पास जो है हम वही उसमें राजा हैं। अब हम सोचे हम रजिस्ट्रार हैं, हम सोचे हम नहीं, हम मुख्यमंत्री। अपनी लाइफ को बहुत सिस्टमेटिकली, बहुत आराम से आगे बढ़ते रहना है। और बस 3 चीज लाइफ में इंपॉर्टेंट है, सब्र, बर्दाश्त, नजरअंदाज। ये 3 चीज सीख लिए। मैं जब नया मैनेजमेंट में आया तो ये तीनों चीज मेरे पास भी नहीं था। तो धीरे धीरे जो है समझा कि ना, सब्र भी जरूरी है, बर्दाश्त भी जरूरी है और नजरअंदाज भी जरूरी है। तो आज देखो ठीक ठाक चल रहा है।
माई बेस्ट विशेस टू ऑल द स्टूडेंट्स जो भी आज यहाँ से जा रहे हैं, और 5.5 साल में हो सकता है कि मेरे से भी जो है कभी कभी आप लोग के लिए कुछ वर्ड्स निकले होंगे, तो क्योंकि क्या है, जाने वक्त जो है सबको भूल कर जाना ही ठीक रहता है। और अच्छे से, और पीजी में हम लोग फिर मिले, इसका मेरा माई बेस्ट विशेस सभी लोगों को। बहुत बच्चे आए अभी कॉन्वोकेशन जो हमारा हुआ, तो करीबन 20 से 25 लोगों ने बोला सर आप ही ठीक थे, बाकी जगह तो बहुत तंग करता है। तो वही है, हमारा ये रहता है कि स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। किसी भी स्टूडेंट्स को, बहुत लोग मुझे बोलते भी हैं कि आप इतना अप्रोचेबल क्यों, बहुत लोग बोलते हैं। आज भी चैम्बर में एक डिपार्टमेंट की फैकल्टी करीबन 5-6 लोग बैठे हुए थे, बोले सर आप अप्रोचेबल बंद हो जाइए ना, फिर देखिए सब ठीक हो जाएगा। हम ना, ये नहीं होगा। स्टूडेंट्स के लिए मैं अप्रोचेबल था, हूँ और रहूँगा। मैंने ट्राई किया है, कोशिश की है कि कल रात में मेरे को 12:40 में किसी ने व्हाट्सएप किया था। किसने किया था? एक लड़की ने किया था, नाम नहीं बोलना चाह रहा हूँ। तो 12:40 में उसका मैसेज आया, 12:42 में उसने उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। रात से 12:40 में कल उसका व्हाट्सएप मैसेज आया मेरे मोबाइल पे, और 12:42 में उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। उसका प्रॉब्लम नहीं था, एक बिल्ली थी, कैट था, जो पाइप में फंस गया गर्ल्स हॉस्टल में। तो वो मेरे को मैसेज आया कि सर मैं शाम से हम लोग बोल रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। तो 12:40 में 12:45 के अराउंड में फिर वो बिल्ली निकल गई। तो यही है, अप्रोचेबल रहने से क्या है, स्टूडेंट्स को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मिलते रहेंगे, जाने की बात नहीं है, हम मिलते रहेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू। Honorable Director, MGM Medical College and LSK Hospital, Dr. Dilip Kumar Jaiswal, and Honorable Road Construction and Industries Minister, Government of Bihar, Honorable Registrar, Mata Gujri University, all distinguished guests on the dais, off the dais, esteemed guests, particularly proud parents who have come all the way, my dear students, all categories of staff, ladies and gentlemen. It is indeed a great pleasure for me to be with you. Actually, I was supposed to be with that, and at your request and the registrars, I am staying. Obviously, you spent more than 5.5 years here. There have been emotions, a sentiment, and attachment. When you came in, you think of it with fear and trepidation. You walk into this always. Over the period of time, leaving hearth and home from vast distances, many of you have come. But in the course of these 5.5 years or more, you have developed a bondage not only amongst yourselves, but with the teachers, with all the staff. And I am sure at this juncture, standing here, where the point of transition from a student who are now a registered medical practitioner. On one side, obviously it will bring back memories we have gone through, memories of all the past years that we have gone through. At the same time, you also stand. So let us therefore take things as they come, live for the moment and do the best. And as I always say, it is not farewell, but fare thee well. I wish you all the best, the very best. Now I hope you understand that as you go, you will be standing on your own feet and you will be responsible for every action, decision, everything. You are now going to be a registered medical practitioner. Have faith in God, trust, and actually when you see the world, it will be an awesome thing. We have gone through it. But
maintain absolute honesty, integrity, truthfulness, humility. A person may be poor, a person may be rich, but that person is as much as a human being as you and me, remember. Illiterate, but that human being also has sense. Will understand where you are taking attention and care and where you are treating with disdain. I would not like to again enumerate and to go on repeating what my previous every word, everyone who has said before me are everything relevant and to the point. Please understand, do not treat a person has come to a doctor with some discomfort. You have money, you go to a 7-star, that's a different issue. But a person has come to a doctor with suffering. Don't add another suffering. Don't treat that person with disdain. In your next phase, what I would say, as he has already pointed out, the Honorable Registrar, number of seats have increased, so you stand a very good chance of getting into post-graduation. Now, I hope you will understand all these years that study is the basis. However, today's modality, whether you go into all those which are available in the market. Now the thing is, it is not a question of knowledge textbook, it's a question of cracking the exam. So, and you have very, very speed and what not you have. So you will go through that. Again, another thing I say, perhaps all of you may not be getting into postgraduate or a postgraduate course of not your choice. But then you have also got it. Remember, there will be many more who have not got it. So give thanks and do that very well. You can shine in that also, in every discipline. And even if you are a general practitioner, that is what the current need of the country is, family physician. So do that also with self-respect. There is nothing to feel that I am not up to the mark, I am not gotten into the post-graduation, the world is over for me. Not at all. If you get it, all for the better. If you don't get it, that also, you can still continue doing good work if you are satisfied with it. So as I said, I wish you all the best, the very best in the days to come. Thank you. धन्यवाद सर, आपके ये शब्द हमें सदैव प्रेरित करेंगे। आपके इन बहुमूल्य वचनों के लिए हम तहे दिल से आभारी हैं। जल्दी ही प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। This is Rishabh. And this is Gurleen, and we are your hosts for tonight. Final year MBBS.
Elegance और tradition का एक perfect combination. Tonight, we are going to observe a spectacle, जहाँ दो अलग-अलग डांस फॉर्म्स एक फ्यूजन होके आएंगी, भरतनाट्यम और कथक. That's absolutely right. We are bringing together the feisty precision and geometric lines of South, Bharatnatyam with swift footwork, graceful spins, and expressive storytelling of North, Kathak. So let's welcome Avinanda, Harshita and Anushka. जल प्रवाह चकार चंड तांडव तनोतु न शिव शिव जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मोधरी ज्वलल्ललाट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रदीक्षण जिन्होंने पिछले साल के समारोह की सबसे भयानक परफॉर्मेंस दी थी. कौन कौन? The Nuns. Get ready, guys. Come on, everyone. Let's make some noise. Energy full power होनी चाहिए. आँखें खुली
दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। चुराना मेरा जिया चुराना मेरा जिया
डांस ट्राई करूंगा ना तो डांस कम और आपकी ड्रिल ज्यादा लगेगी। ये बताओ कि तुम आगे क्या करोगे? मेरे हिसाब से अब आगे बढ़ने से पहले फेलिसिटेशन करवा देते हैं। सही बात है। इसके लिए अर्शदीप और निम्रत को बुलाना पड़ेगा। So before we hand over the mic to our co-anchors, ये बता दें कि समारोह अभी बाकी है। Years of hard work, sleepless nights, laughter-filled corridors, and lifelong friendships. Now, we request our respected Vice Chancellor, Dr. Sudipto Ghosh, sir, to come on the stage and present the honors. Sir, your distinguished presence here today elevates the spirit of our celebration and reminds us of the heights that dedication can reach. Dr. Abhishek Kumar. Dr. Abhishek Kumar. Dr. Aditi Arvind Chaudhary. Dr. Aditi Kumari Arya. I will request the audience to please keep the applauses going. Dr. Aditya Vardhan. Dr. Akash. Dr. Amit Kumar. Dr. Anjali Kumari. Dr.
Dr. Arpan Sidhu. Dr. Avijit. Dr. Ayush Raj. Dr. Ayush. Dr. Ayushi Raj. Dr. Dipanshu Bansal. Dr. Dhunde Rupesh Basli. Dr. Dilip Kumar. Dr. Diya Gupta. Dr. Faliha Zainal. Dr. Garima. Dr. Gunyaz Roop Singh. Dr. Har Dr. Harshpreet Singh Lubhana. Dr. Himanshu Bharat Meshram. With deep gratitude, please join me in welcoming Engineering Sir as he comes forward to receive the special award. Dr. Engineering Sir.
Dr. Joypreet Singh. Dr. Jyoti Kumari. Dr. Keshav Sharma. Dr. Komal. Dr. Kumar Sumit. Dr. Manish Kumar. Dr. Manish Kumar. ऐसे तो बनेगा Dr. Manish Kumar Mandal. Dr. Manjot Singh. Dr. Manpreet Jyot Kaur. Dr. Mansi Sethi. Dr. Matangi Sharma. थैंक यू Dr. Mehatpreet Kaur. थैंक यू Dr. Mukesh Kumar. थैंक यू Dr. Muskan Malhotra. थैंक यू Dr. Navroop Kaur. Dr. Nidhi Pandey. Dr. Nikun Savaria. Dr. Pavneet Sethi. Dr. Rahul Kumar. Dr. Raja Gehlot. Dr. Rajan Anand. अभी नहीं देगा अभी दूसरा ना आपका कोई Dr. Rakesh Kumar. Dr. Roshan Kumar.
ISO का यहाँ रिंग है, रिंग से ISO तक बढ़ता है यहाँ से, तो मालूम है ये जो बात नहीं है। डॉक्टर रिया प्रसाद, डॉक्टर रोहन कुंबेर, डॉक्टर सचिन कुमार, Thank you so much, sir, for being a part of this special moment and for inspiring us to create the remaining batch of students. Mazumdar. Dr. Sanskar Shoy. सर इधर नहीं सर, थैंक यू। Dr. Shriyanka Nandan. Dr. Shubhri Walia. Dr. Siddharth Shankar. Dr. Simmi Sinha. Dr. Smiley Paul. Dr. Sovi Guha. Dr. Suhail Akhtar. Dr. Sukhmanji Kaur. Dr. Sunidhi Gupta. Dr. Swastik Kumari. As we conclude this segment, we would like to extend our heartfelt gratitude to Sir for taking the time to honor and encourage our students with such warmth and generosity. Thank you so much, Sir. India. Dr. Vishi Pragyan.
एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हैं और रियलिटी कुछ और ही होती है। बट गाइस, जोक्स अपार्ट, एक्सपेक्टेशंस कुछ भी हो, रियलिटी इज ऑलवेज बेटर देन एक्सपेक्टेशन। एग्जैक्टली और एमबीबीएस का रूल भी यही है, एक्सपेक्टेशंस मत रखो बट अटेंडेंस जरूर रख लेना। So now we are presenting our first enactment, which is dedicated to every student of batch of 2020. लड़कियों की एक्सपेक्टेशन। Let's start. 1, 2, 3. Not applicable. Oh, never mind. Huh. 5. Oh. Let's have a round of applause for this beautiful performance. यार मेरा तो हार्ट रेट हाई हो गया, शायद ईसीजी करवाना पड़ जाए। पर इस समय मैंने खुद की इंट्रोडक्शन तो दी ही नहीं। मैं हूँ हरबाज, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। दिन में पेशेंट्स देखता हूँ और आज रात तो मेरी ऑडियंस। पर आज का सबसे बड़ा केस है कि मेरी को एंकर प्राची का है यार। ये लड़कियां बिना मेकअप में इतना टाइम लगा देती हैं। अरे प्राची देखो क्या हुआ। यार मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था तो सोचा था लाइफ स्टेबल होगी, पर यहाँ तो मेरी बोन्स ही स्टेबल नहीं है। मैं एक ऐसे इंसान हूँ जिसका एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पैर टूट चुका है। अब तो इट्स नॉट एन एक्सीडेंट एनीमोर। नेटफ्लिक्स पे आ जाना चाहिए, ब्रेकिंग लेग सीजन 3। पर यार प्राची अब तुम भंगड़ा कैसे करेगी? यार ढोल की आवाज सुनकर तो मैं एक पैर में भी भंगड़ा पा लूं। अरे वाह, So brace yourself for the performance full of fun, passion. ऐसा नहीं। ओ बारी बरसी खटन गया सी, ओ बारी बरसी खटन गया सी, खटके ले आंदा प्यार। ओ बारी बरसी खटन गया सी, खटके ले आंदा प्यार। ओ भंगड़ा ता सजदा जद नचन साडे यार। So brace yourself for the भंगड़ा crew. वक्खो वक्त सपने बनाइया टोलियां। ओ भाई जदों ढोल उत्ते डागा ਵੱਜਦਾ उस वेले लगदा पंजाब नचदा। आज के जमाने में किताबां दे बोझ थले शायद ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਕਿ ਅਸਲੀ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। और आज इस किस्म की धरती ते फिर तो मुड़ के वही जोश जगाउण आ रहे हैं। ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਲਲਕਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ते भाई ये ललकारे पूरे कॉलेज ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਫਿਰ ਅੱਜ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈਕ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸੋ। भाई आवाज नहीं आई। आवाज नहीं आई और डरते क्यों हो सिंगा? दिल खोल के ताजे मां स्वागत करो। जो पेश कर जा रहे पंजाब का परसेंट लोक नाच, पंजाब दी आन बान शान, भंगड़ा भंगड़ा भंगड़ा।
मैं पिछड़ती बिलोनी अंग अंग तो अंग के बिलोनी मैं मारी करती बिलोनी अंग अंग तो कटिया तेरे को मिलान कर प्रेम कुर्बान तड़क के यार में दुख मेरे नाल सांस ना करो रहे दिल ना
ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ